हाय एवरीवन। आज हम लोग अल्लर नर्व कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अल्लर नर्व मीडियल कॉर्ड का ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सिस के, एंड इट कम्स इनटू आर्म इन प्रॉक्सिमल arm. It lies medial to the axillary artery, and in distal arm it lies in a posterior compartment, जहाँ पे ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से फोराम में एंटर करता है by passing between two heads of flexor carpi ulnaris, and forearm में it gives branch to flexor digitorum profundus, its medial half, and also it also gives the two cutaneous branch, that is palmar cutaneous nerve and dorsal cutaneous nerve of hand. इसके सप्लाई को हम अभी देखेंगे. एंड आफ्टर passing through the Gans canal, that is under the pisohemat ligament, it comes into the hand, and here it supplies to the hypothenar muscle. It gives the superficial branch that supplies the palmaris brevis, another hypothenar muscle, and it supplies the third and fourth lumbrical, and ends up by supplying the two, or you can say one and a half, thinner muscle, that is adductor pollicis brevis and deep head of flexor pollicis brevis. That's why we call adductor pollicis brevis as a graveyard of ulnar nerve. And as we have discussed, it gives two cutaneous branches in a forearm, that is palmar cutaneous nerve and dorsal cutaneous nerve of hand. So these two nerves supply, cutaneous supply is, you can see in this picture. This is a palmar aspect of hand, this is a dorsal aspect of hand, and palmar cutaneous nerve supply the medial 1.5 palm of the hand, and dorsal cutaneous nerve supply the medial 1.5 dorsum of the hand, including the fingers. And after passing through the Gans canal, it gives the superficial branch, and that superficial branch, along with this, its supply to the palmaris brevis, it supply the 1.5 medial finger of the hand. And what is the autonomous zone for ulnar nerve? So tip of the little finger is the autonomous zone for ulnar nerve. Now we will see the site where ulnar nerve usually get compressed. So सबसे पहले क्या है, arcade of Struder है. Arcade of Struder क्या है? This is 8 centimeter proximal to the medial epicondyle, and it extends from the medial head of triceps to the medial intermuscular septum. तो यहाँ पे ये कंप्रेस हो सकता है. दूसरा, ये कंप्रेस बिहाइंड द मीडियल कॉन्डाइल हो सकता है. क्यूबाइटस वेल्गस में भी अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाता है, जिसको टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी कहते हैं, एंड इट कैन गेट कंप्रेस बिटवीन द टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस. तो इसको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम कहते हैं, एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन compressive neuropathy in the upper limb after the carpal tunnel syndrome. तो क्यूबाइटल टनल की बाउंड्री क्या है? The roof is formed by the flexor carpi ulnaris fascia and Osborn ligament. और ये कहाँ कंप्रेस हो सकता है? ये गाइंस कैनाल में कंप्रेस हो सकता है, पिसोहेमेट लिगामेंट के नीचे. तो अब हम इसके क्लिनिकल टेस्ट और प्रेजेंटेशन देखते हैं. तो सबसे पहले we will discuss the claw hand. So ulnar nerve supplies the third and fourth lumbrical. Lumbrical का क्या काम है? अगर आप हैंड से L बनाएंगे, L for lumbrical, तो this is the function of lumbrical. It flexes the metacarpal phalangeal joint, carpal phalangeal joint, and it extends the interphalangeal joint. तो जब ये lumbrical मसल का जो अल्नर थर्ड और फोर्थ लंबराइकल मसल जो अल्नर से सप्लाई हो रहा था, व्हेन इट गेट्स हैम्पर्ड,
तो इसकी पालसी हो जाएगी। तो हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट होगा, और इसी को क्लॉ हैंड कहते हैं। यहीं पे एक आता है अल्नर पैराडॉक्स, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि हाई नर्व पालसी में कहीं भी ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है, बट इन केस ऑफ अल्नर नर्व पालसी जो लोअर अल्नर नर्व पालसी होगा उसमें प्रेजेंटेशन मोर सीवियर देन हाई अल्नर नर्व पालसी होगा, क्योंकि लोअर अल्नर नर्व पालसी में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस स्पेयर रह जाता है, और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के का फ्लेक्शन कराता है, जो कि क्लॉ हैंड में भी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उसका फ्लेक्शन होता है। तो और फ्लेक्शन जो है और प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो इसलिए लोअर अल्नर नर्व पालसी में जो प्रेजेंटेशन है वो हायर अल्नर पालसी से ज़्यादा सीवियर होगा, तो इसी को अल्नर पैराडॉक्स कहते हैं। और हाई लो अल्नर पालसी कब कहेंगे? जब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस भी इन्वॉल्व होगा, तो अब हम हाई अल्नर पालसी कहेंगे। अगर एनाटॉमिकली देखें तो अबव एल्बो हम हाई अल्नर पालसी और बिलो एल्बो हम लो अल्नर पालसी कहते हैं। एंड व्हाट इज बुक टेस्ट एंड फ्रॉमेंट साइन? वी आस्क पेशेंट टू होल्ड द बुक बिटवीन द मीडियल border of palm and side of the thumb. This is the action of adductor pollicis brevis that is supplied by the ulnar nerve. लेकिन जब ये adductor pollicis brevis काम नहीं करेगा ड्यू टू अल्नर नर्व पालसी, तो पेशेंट कैसे होल्ड करेगा? बाय flexing at interphalangeal joint of thumb, that is done by the muscle flexor pollicis longus, and जो सप्लाई होता है मीडियन नर्व से। तो ये साइन जो है फ्लेक्शन एट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये फ्रोमेंट साइन है, और ये टेस्ट है वो बुक टेस्ट है। इगावा टेस्ट क्या है? हम पेशेंट को कहते हैं कि फिंगर्स को फैन करने के लिए, और ये क्या है? एबडक्शन है फिंगर्स का, जो डॉर्सल इंटरोशाई कराता है। तो अगर ये पेशेंट ये नहीं कर पा रहा है, फैनिंग नहीं कर पा रहा है, तो अल्नर नर्व कंप्रेस्ड है, जिसकी वजह से डॉर्सल इंटरोशाई फंक्शन नहीं कर पा रहा है। उसी तरह कार्ड टेस्ट है, हम पेशेंट को कहते हैं कार्ड होल्ड करने के लिए बीच में फिंगर्स के। तो अगर पेशेंट कार्ड होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब वो एडक्शन कर पा रहा है, और एडक्शन काम है पामर इंटरोशाई का, जो अगेन अल्नर नर्व से सप्लाई होता है। तो ये गावर टेस्ट और कार्ड टेस्ट हो गया। हम जीनी टेस्ट, मैसेज साइन एंड पॉलक टेस्ट भी अभी देखेंगे, एंड उससे पहले वाटरबर्ग साइन। तो यूजुअली क्या होता है अल्नर पालसी में, आपका जो लिटिल फिंगर होता है वो रिलेटिवली ट्रेस्ड इन एबडक्शन। ये अगेन पामर इंटरोशाई के, जो पामर इंटरोशाई है जो एडक्शन करा रहा है फिफ्थ फिंगर का, क्योंकि अल्नर पालसी हो रखा है तो उसमें एडक्शन नहीं हो पाएगा। एट द सेम टाइम क्योंकि रेडियल नर्व सप्लाई करता है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी को, तो उसके एक्शन की वजह से ही एबडक्टेड और एक्सटेंडेड रहेगा। तो ये वाटरनबर्ग साइन है। और वाटरनबर्ग साइन को वाटरनबर्ग सिंड्रोम से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वाटरनबर्ग सिंड्रोम चिरालजिया पेरेस्थेटिका को कहते हैं, दैट इज कंप्रेसिव न्यूरोपैथी ऑफ द क्यूटेनियस नर्व क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब हम मैसेज साइन देख लेते हैं। दिस इज लॉस ऑफ हाइपोथिनर एंड फ्लैटेंड पामर मेटाकार्पल आर्च, एंड पॉलक स्टेज इज इनएबिलिटी टू फ्लेक्स डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ लिटिल एंड रिंग फिंगर्स। और जीनेस साइन क्या है? पेशेंट को की पिंच के लिए कहते हैं, एंड तो पेशेंट कंपल्सरी थंब मेटाकार्पोफेरेंजियल हाइपर एक्सटेंशन करता है, तो compensates for the loss of interphalangeal extension and thumb adduction by adductor pollicis that is supplied by ulnar nerve। तो ये था ulnar nerve के बारे में। थैंक यू।